मेरी हाँ कर दो, मैं तो रेडी हूँ। चलो चौथी चैट खोल देना। गुड इवनिंग बच्चों। जस्ट मोमेंट प्लीज। टाइम क्यों चेंज हुआ? टाइम कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से चेंज हुआ। मेरी कुछ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बट खान में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो खान के सारे टीचर्स खान के स्टूडियो में बिजी थे, स्टूडियो अवेलेबल नहीं था। मैं घर पहुंचता हूँ 7:15 बजे। आई रीच होम बाई 7:15 7:20 एंड ये बेसिकली उसी का नतीजा है कि 7:30 बजे हमारी क्लास है। ओनली फॉर टुडे द टाइमिंग इज चेंज्ड, ओनली फॉर टुडे। वैसे हमारी टाइमिंग रहेगी 6 to 8 ओनली। ठीक है, कल क्लास नहीं है। ठीक है, टुमारो देयर इज नो क्लास। ठीक है, 9 बजे तक क्लास रहेगी आज। हाँ, आज भी बहुत तेज बारिश है। ठीक है, तो मेरी एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू गाइस क्लियरली? Am I audible? Am I visible to you guys? Akash, I try my best to maintain the speed. Only my class will be off. मुझे औरों का नहीं पता। ठीक है, चलो day after tomorrow as usual the class will be there. टाइमिंग आपको पता लग जाएगी। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंडिया श्रीलंका. So yesterday we talked about the story of Sri Lanka and Roshan, in the end of the class I will tell you why. ठीक है, वो बताना जरूरी है आप लोगों को why.
अब इतने सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो इट्स माय सन्स बर्थडे टुमारो, तो इसलिए आई एम डूइंग इट ऑफ टुमारो। ठीक है, अगर आई थिंक रीज़न क्लियर हो गया हो आप लोगों को, तो आई होप इट इज़ फाइन। ठीक है, नाउ let's get started, and we will be dealing with India Sri Lanka, and we will be completing this India Sri Lanka topic today. We started with India Sri Lanka, so we covered the first year 1948 where Sri Lanka got independence, and as Sri Lanka got independence, so there were problems in Sri Lanka regarding the Tamilians and the Sinhalese. Sinhalese were the original inhabitants of Sri Lanka. They considered themselves, and they started taking certain actions to consolidate their dominance in the region. They passed this Sinhala Only Act in 1956, which proclaimed Sinhalese as the national language of Sri Lanka. 1964 Shastri Sirimavu Pact was there, according to which India had to give citizenship to 3 lakh people out of 5,25,000 identified people, but India was too slow in granting citizenship due to multiple reasons which we saw. Anil, at the end of the class, please. I'll definitely get to this. Okay. And then in 1972, a new constitution was adopted by Sri Lanka, which consolidated the position of the Sinhalese more over there. 1976, LTTE as a militant organization of the Sri Lankans was formed, and 1983-84 the civil war started, where the LTTE cadres attacked a convoy of the Sri Lankan army. अब समझना ये है कि LTTE was a militant organization, and there were other small militant organizations also of the Tamilians. ये ध्यान से सुनना. And on the other hand, there were political organizations of the Tamilians as well. So Tamilians were fighting for their cause. They had political organizations and they had militant organizations also now. Militant organizations, LTTE was among one major militant organization. Political organization, if I talk about, it was Elam People's Revolutionary Liberation Front, EPRLF. It was one such political organization of the Tamils. ठीक है, मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि कल क्लास ऑफ है. एम आई नाउ क्लियर टू एवरीवन? कमेंट्स में लिखना ये बंद करो. टुमारो क्लास इज ऑफ. After the class today, you will get the notes of India Sri Lanka. And really thank you for the wishes which you guys are giving. And please अब करते हैं क्लास. ठीक है, आयुषी राजपूत, प्लीज प्लीज जो भी है. ठीक है, चलो. तो तमिल्स की दोनों टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी. Political organizations who wanted to politically negotiate with the Sinhalese government and wanted to pursue their goal. गोल क्या था उनका? उनका बेसिकली गोल पता है क्या था? Their goals changed over the period. ये चीज समझते हैं. Their goals changed over the period. First, initially, when LTT was formed, they said that we will form a Tamil land where the Tamils living in India, in Tamil Nadu, and the Tamils living in Sri Lanka. The green area which you are seeing over here
is the areas which were claimed by LTT. हम इसको एक separate country बनाएंगे. We will form it as a separate country. Their goal was this. अब इंडिया ने आज तक किसी भी स्टेट को अलग होने नहीं दिया. There have been multiple movements. There have been the movement of Nagas. There have been movement by different ethnic communities in Northeast. There have been movements in Punjab, the Khalistan movement, for forming a separate country. But government of India was very clear and firm on this. That nobody can form, a separate country. Nobody can secede or take away a territory from India and form a separate country. तो LTT came to realize this. चलो भाई separate country नहीं, इंडिया आउट ऑफ द पिक्चर हो गया. ठीक है. अब वो इस टेरिटरी को, जो आप ग्रीन टेरिटरी देख रहे हैं इधर, दिस वाज द एरिया क्लेम्ड बाय LTT. वो अब चाह रहे थे कि इसको सेपरेट कंट्री बनाए. बट दे रियलाइज्ड कि भाई द सिनेलीज गवर्नमेंट ओवर हियर विच इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलंबो विल नॉट अलाउ इट. मतलब ये कैपिटल मान लो, कोलंबो यहां तो नहीं है खैर, इट इज अ कोस्टल सिटी. इसको अलग कंट्री बनाएंगे. बट देन दे रियलाइज्ड कि भाई इसको भी अलग कंट्री नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते. तो व्हाट दे स्टार्टेड डिमांडिंग फाइनली एंड इवेंचुअली वाज कि हमें सिटीजनशिप ग्रांट दो. वी शुड बी ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ श्रीलंका. एंड सेकेंड, दिस तमिल रीजन should be made autonomous. Autonomous का सिंपल मीनिंग इज दिस कि हमें अपने तरीके से कानून बनाने. We want certain subjects on which we can legislate, we can make laws. We want a certain level of judiciary. We want certain level of executive powers. And this is all what autonomy over here is. तो ये इनकी मांगे थी. एक तरीके से वो ये चाह रहे थे कि तमिल प्रोविंस बन जाए. प्रोविंस मतलब जैसे स्टेट है इंडिया में, यूपी है, बिहार है, लाइक दिस. दीज आर प्रोविंसेस इन इंडिया. ये कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में जो है. दे कैन execute them. They have their chief ministers in the state. They can adjudicate them also. Judiciary वगैरह भी है, high courts and all. So they were wanting this. They were wanting to be part of Sri Lanka. श्रीलंका के अंदर रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. बट हमको ये जो रीजन है यहां पर ये ऑटोनॉमी दे दो. मींस मेक इट एज अ प्रोविंस इन श्रीलंका. मैं बता दिया करूंगा, मैं बता देता हूं आकांक्षा, डोंट वरी. अब लिखने की मुझे पता है, सबसे ज्यादा टेंशन लिखने की होती है, आप लोगों को समझने की नहीं होती है, मुझे पता है. वंदना, अभी सारी चीजें यूल बी आपको क्लियर होंगी. ठीक है. सो दे वर वांटिंग ऑटोनॉमी. अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं. ठीक है. तो उसके लिए लड़ाई हो रही थी. And this was the area which was claimed by LTT, the green one which you are seeing on the board. They were fighting for this thing against the Sri Lankan government, जिसके अंडर में श्रीलंकन आर्मी भी थी. तो बेसिकली श्रीलंकन आर्मी से उनकी फाइट थी. तो इट वाज लाइक दिस. अब क्या हुआ? देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस. ये मारते थे कुछ इनके, ये इनके कुछ मारते थे. तो देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस गोइंग ऑन. एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फैक्शंस थे तमिल्स के, they also used to negotiate with the government of श्रीलंका. तो मतलब तमिल्स वर लाइक मिलिटेंट भी हो गए थे, पॉलिटिकल नेगोशिएशन भी चल रहा था. पॉलिटिकल नेगोशिएशंस वाज आल्सो गोइंग ऑन.
कंट्रोल एज सच नहीं था, देयर वाज नो पॉलिटिकल कंट्रोल, देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हाँ, इस इलाके में वो रहते थे तो एक तरीके से उनकी चलती थी, बट यहां पे आर्मी वाले घुसते थे, श्रीलंकन आर्मी वाले। अब श्रीलंकन आर्मी के हिसाब से तो ये इलाका जो है ये गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के अंडर है, और फिर वहां पे आर्मी ऑफ श्रीलंका और एलटीटी वालों की झड़प होती थी, जो भी होता था, लड़ाई वड़ाई होती थी, अटैक्स होते थे एक दूसरे पे। सो दिस इज हाउ इट वॉज फॉर्म्ड। मनसुख, कहीं सुनी बातों पे एज एस्पिरेंट्स वी शुड नॉट गो, और ना कहीं सुनी बातों पे विश्वास करना है, और कहीं सुनी बातें हम अपने आंसर में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट, वी शुड नॉट, only and only we can write those things which are testified by the government of India, and government of India does not testify that LTT was established by India. तो हम सिर्फ उसको सच मानेंगे जो गवर्नमेंट टेस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो कहीं सुनी बातें कहीं सुनी ही रहने दो, और कोशिश करो कि सुनो ही मत ऐसी बातें। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका was obviously fed up with this civil war going on over there. In 1987, मैं अब सब लिखवाऊंगा बट अभी समझने पे ध्यान लगाएंगे। 1987 में श्रीलंकन गवर्नमेंट अप्रोच्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई कुछ करो, डू समथिंग, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द तमिलियंस, वी आर रेडी टू मेक आर कंट्री अ फेडरल कंट्री। पहले ही वो यूनिटरी थी, मतलब देयर वर नो स्टेट्स, एंड दिस फेडरलिज्म वुड गिव ऑटोनॉमी टू द तमिलियंस। Government of Sri Lanka said that we are ready to amend our constitution for doing that, but we want peace after that. हमें peace चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया said okay, Rajiv Gandhi was India's prime minister, he said okay, we will help you if you are ready to do the changes, accommodate the demands of the Tamilians, we will definitely help you in you know doing that। अब ये सारी बातें हो रही है 1987 में। डोंट राइट, आई विल मेक यू राइट। श्रीलंकन गवर्नमेंट amended their constitution, 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने लागू करा। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड श्रीलंका फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी से फेडरल बने। एंड दे अग्री टू मेक द तमिल प्रोविंसेस, जो तमिल्स डिमांड कर रहे थे। दे ऑल्सो अग्रीड कि भाई सिटीजनशिप दे देंगे इनको, बट एकदम से नहीं देंगे, थोड़े टाइम में देंगे। Then what happened? Government of Sri Lanka, approached Government of India. The Government of India, please help us in peacefully implementing the 13th Amendment Act. Peacefully implement का मतलब था कि Tamils got what they wanted in the form of 13th Amendment Act. Now, all the Tamil militants who have picked up arms, they should give up on arms. अब उनकी बारी है हथियार डालने की। And Government of India, you will help us in doing that, because ये Tamilians हैं, they have cultural connections with India. The Government of India said okay. Government of India sent Indian peacekeeping forces over there.
IPKF launched Operation Pavan. Operation Pavan's ultimate objective was to peacefully implement the 13th Constitutional Amendment Act, make the Tamil militants give up on their arms. ये ऑपरेशन पवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था. एंड दिस फोर्स वॉज डिस्पैच्ड. अब वो चली गई, फोर्स पहुंची. जब पहुंची उसके बाद इट वॉज बीइंग डिसाइडेड कि भाई जो प्रोविंशियल असेंबली होगी, जो प्रोविंस की असेंबली होगी, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यहां पे स्टेट्स में, तो उसका जो हेड बनेगा, मतलब जो यहां पे चीफ मिनिस्टर होता है, वहां पर बेसिकली दिस पोजीशन वाज CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, who will be the CAO of Provincial Assembly of the Tamil region. एंड ये CAO बनने के लिए जो लड़ाई थी, ये तमिल्स की आपस में लड़ाई थी, कौन बनेगा. LTTE वाले बंदे कहते हैं, जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये CAO जो है ये हमारा बंदा बनेगा. बट IPKF इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि LTTE का बंदा नहीं बनेगा, ये CAO जो बनेगा ये बनेगा EPRLF का बंदा, ईलम पीपल्स रेवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक पॉलिटिकल आउटफिट थी तमिल्स की, जिन्होंने पूरी लड़ाई अपनी श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ पीसफुल नेगोशिएशंस के माध्यम से लड़ी. दे फॉट विद they fought with the government of Sri Lanka in a very peaceful way. Politically, they wanted to negotiate always. Whereas on the other hand, LTT was a militant group. How could a person from LTT become a political head of the provincial assembly? This was IPKF's decision. अब देखो, इंटरफेयरिंग टू मच. IPKF अपने से नहीं ले रही थी, IPKF was receiving orders from government of India. So it was like this. वो तो इंडियन फोर्सेस थी, they were definitely receiving orders from government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से रिजेक्टेड LTT's demand that their person will be the CAO of the provincial assembly. And this, angered the LTT against IPKF. अब क्या हो गया था, अब द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन LTT एंड IPKF, इन दोनों के बीच में. IPKF ने LTT के कई सारे लोग टॉप हेरार्की उड़ा दिए. दे किल्ड हिम. 13th अमेंडमेंट एक्ट, पीसफुल इंप्लीमेंटेशन, इसकी धज्जियां उड़ चुकी थी. 1989 IPKF was called back. ये खत्म हो गई. It was called back by the government. LTT काफी कमजोर हो चुकी थी, because when a top hierarchy of any organization is gone, तो प्रॉब्लम हो जाती है. 1991, 2 साल बाद, हमने LTTE के टॉप हेरार्की को उड़ाया था. उनके टॉप मोस्ट बंदे प्रभाकरन को नहीं, बट हाँ टॉप हेरार्की में से काफी सारे लोगों को. उन्होंने रिवेंज लेने के लिए
हमारी हायरार्की के टॉप मोस्ट बंदे को उड़ा दिया, राजीव गांधी। दे असैसिनेटेड हिम। सो इट वाज लाइक दिस। एलटीटीई को आर्म्स एम्यूनिशंस कहां से मिलते थे? बेसिकली ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जिसके कई सारे जवाब हैं। सम पीपल से इट वाज यूएसए हु वाज सपोर्टिंग एलटीटी, सम पीपल से इट वाज रशिया आल्सो व्हिच वाज सपोर्टिंग। बीच में तो ये भी सुनने में आया था कि थ्रू पाकिस्तान दे आर गेटिंग। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल थ्योरीज बिहाइंड इट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दोस थ्योरीज एंड लेट अस जस्ट कंसिडर कि भाई ऑपरेशन पवन एक फेल्ड ऑपरेशन था ऑफ द आईपीकेएफ एंड इसीलिए एस जयशंकर जी अपनी स्पीच में जो हमने की इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पढ़ी थी, उसमें एस जयशंकर जी बोल रहे थे कि मिस एडवेंचर्स ऑफ आईपीकेएफ, वो ये मिस एडवेंचर्स थे आईपीकेएफ के जो उन्होंने वहां पर करे श्रीलंका में। ठीक है, सो इट वाज लाइक दिस। चलो 1987 वाले पॉइंट में हम लिखेंगे, इंडिया इंटरवीन्ड, इंडिया इंटरवीन्ड डायरेक्टली इंडिया इंटरवीन्ड डायरेक्टली after it faced opposition from, after it faced opposition from Tamilians. INTERVENED. India intervened directly after it faced opposition from Tamilians and flooding of refugees. And flooding of refugees. मुस्कान अभी बताते हैं, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। Full stop. A peace accord was signed. A peace accord was signed. हाँ मनसुख, देखा मैंने। A peace accord was signed and Sri Lanka amended its constitution. Sri Lanka amended its constitution. Bracket में 13th Amendment Act. Abhishek Kumar, it is good to listen to these kind of stories, but it is not to believe in such kind of stories that these are true. Maybe they are true, maybe they are false. और जहां पे भी ये वर्ड मे भी आ जाता है तो हमें उसको साइड कर देना चाहिए एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम ये वाली चीजें एग्जाम में नहीं लिख सकते। लिखोगे तो एग्जामिनर पटक के शीट आपकी पटकेगा और नंबर नहीं देगा आपको। फुल स्टॉप। श्रीलंका promised to give an Sri Lanka promised to give an autonomous provincial council, autonomous provincial council to Tamilians. Sri Lankan government, Sri Lankan government also requested, also requested
Government of India to send Indian Army to send Indian Army so that the disarmament of Tamil militant forces could happen. Could happen. Full stop. Hence, India sent. Hence, India sent Indian peacekeeping forces. Indian peacekeeping forces. Hence, India sent Indian peacekeeping forces ब्रैकेट में IPKF and named it Operation Pavan and named it Operation Pavan. मैं लास्ट के दो सेंटेंसेस रिपीट कर रहा हूं. श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड इंडियन आर्मी so that disarmament of Tamil militant forces could happen. So that disarmament of Tamil militant forces could happen. Full stop. Hence, India sent Indian peacekeeping forces. India sent Indian peacekeeping forces ब्रैकेट में IPKF and named it Operation Pavan. नेक्स्ट पैराग्राफ 1987 वाले पॉइंट में ही नेक्स्ट पैराग्राफ. LTTE rejected the peace accord. LTTE rejected the peace accord. कुछ खास यूएन का इंटरवेंशन नहीं था यहाँ पे. इट वॉज जस्ट मियरली फॉर द सेक कि भाई सिविल वॉर चल रहा है तो कुछ कह लो एक दो बार. इट वॉज लाइक दिस ओनली. ठीक है सचिन. LTTE rejected the peace accord because they opposed the CAO of the regional council to be from EPRLF. To be from EPRLF. EPRLF की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख लो. ईलम EELAM ईलम पीपल्स रेवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट.
Elam People's Revolutionary Liberation Front. ठीक है, ब्रैकेट में ये फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद लिखेंगे LTTE प्रपोज्ड, LTTE प्रपोज्ड its candidate as CAO, which was rejected by India, which was rejected by India. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है CAO की फुल फॉर्म। Now the conflict was between IPKF and LTTE. IPKF and LTTE. IPKF assassinated the leaders of top hierarchy of LTTE. ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट ईयर लिख लेंगे 1989। ये सारी बातें 1987 में हो रही थी, अब 1989 लिख लेंगे नेक्स्ट ईयर टाइमलाइन में। IPKF was withdrawn. IPKF was withdrawn. IPKF was withdrawn 1989 में। 1991 Rajiv Gandhi was assassinated. Rajiv Gandhi was assassinated. Was assassinated by LTTE. By LTTE. Now, if I tell you guys that the 13th Amendment Act has not been implemented till now, I would not be wrong, I would be right. वो implement ही नहीं हुआ है, पास हो गया है, everything is there, it is mentioned in the constitution, but Sri Lanka still acts like a unitary government. प्रोविंसेस में इलेक्शंस ही नहीं हुए बहुत सालों से, प्रोविंसेस सिर्फ पेपर पे बने हुए। तो last year the Indian Prime Minister met with the Sri Lankan Prime Minister, the Sri Lankan President, sorry, and he conveyed कि भाई 13th Amendment Act implement कर लो। 13th Amendment Act अभी तक implement नहीं हुआ, ठीक है।
1991 में मुस्कान कुमारी राजीव गांधी असैसिनेट हुए थे, ठीक है। यू कैन यूज एलटीटी एज शॉर्ट फॉर्म इन योर एग्जाम्स, बट एक बार शॉर्ट फॉर्म यूज करने का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि यू हैव टू वंस इन योर आंसर स्क्रिप्ट, अपनी कॉपी में, पूरी कॉपी में एक बार तो आपको फुल फॉर्म लिख के उसके आगे शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो दोज पीपल हु वर आस्किंग मी अबाउट ईपीआरएलएफ का क्या हुआ, सर ईपीआरएलएफ का कुछ भी नहीं हुआ। वाई? बिकॉज देर आर नो प्रोविंशियल काउंसिल इन श्रीलंका। क्या होगा उनका, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। Opposition from Tamilians and flooding of refugees, flooding of refugees, ठीक है। अब 2003 में श्रीलंका गवर्नमेंट ग्रांटेड सिटीजनशिप टू द तमिलियंस। ये लिखते रहना। देखो, 13th अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फुली, बट सिटीजनशिप हैज दे हैव बीन गिवन, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। प्रोविंसेस बने थे श्रीजल, बट प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक वहां की प्रोविंशियल काउंसिल नहीं होगी दैट विल मेक लॉज, दैट विल इंप्लीमेंट दोज लॉज। व्हाट इज द यूज ऑफ दोज प्रोविंशियल provinces without a provincial council? You don't have the powers. You are only provinces on paper. Srijal, understand it in this way, ठीक है। सो ऐसा प्रोविंसेस के इलेक्शंस ही नहीं हुए बहुत सालों से। Yes, province citizenship to all the Tamilians who were there. So Tamilians were pacified. Now they identify themselves as part of Sri Lanka. Like Muthaiya Muralitharan, जो फेमस बॉलर है, उनकी जो वाइफ है वो इंडिया के तमिलनाडु से गई है, वो श्रीलंकन तमिल है मुथैया मुरलीधरन, और यहाँ जो उनकी वाइफ है वो इंडियन तमिल है, तो दे गॉट सिटीजनशिप देयर। तो थोड़े से पैसिफाई हो गए तमिल्स। हाँ, दे हैव दिस कंटेंशन अभी कि भाई 13th अमेंडमेंट एक्ट फुली इंप्लीमेंट हो, फुली इंप्लीमेंट हो, बट देयर वाज अ पॉलिटिकल टर्मोइल इन श्रीलंका रिसेंटली, ठीक है। श्रीजल, आर यू क्लियर? प्रोविंसेस बन के भी नहीं बने एक्चुअली, बात ये थी, क्योंकि उन प्रोविंसेस का कोई मतलब नहीं है जहां पर प्रोविंशियल काउंसिल ना हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 2005, शास्त्री सिरिमावो पैक्ट ठंडे बस्ते में गया, नथिंग हैपेंड ऑफ दैट, ठीक है। जो इंडिया आ गए थे उनको सिटीजनशिप मिल गई। अब जो 2003 उसके बाद वहां रह गए थे सिविल वॉर के दौरान, उसके बाद सबको फिर सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। तो इट वाज लाइक दिस। तो इट इज दिस वे। प्रिया नेगी, कोई रिवेंज तो हमारी नजर में नहीं है, खैर गलती इंडिया की थी, रिवेंज तो उन्होंने लिया था। हाँ, इंडिया डेफिनेटली डिड पनिश the killers of Rajiv Gandhi, which were in news recently when they were granted bail last year or something like this happened, ठीक है। सो दिस वाज देयर। अब आते हैं मेन ईयर 2005। अब चाइना की यहां पे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, द एक्टिविटीज ऑफ चाइना आर स्टार्टिंग ओवर हियर, ठीक है। महिंदा राजपक्सा बिकम्स द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ये बन गए श्रीलंका के। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स श्रीलंका स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन द हैंड्स ऑफ चाइना अवे फ्रॉम इंडिया। सो दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट ओवर हियर। And when Mahinda Rajapakse became the president, he took a vow कि भाई मैं जो है आई विल एंड सिविल वॉर। ये जो बचा कुचा है, ऑल दो सिविल वॉर वीकेंड अलॉट बिकॉज द टॉप हेरार्की ऑफ द लार्जेस्ट तमिल मिलिटेंट ग्रुप दैट इज एलटीटी वाज वाइप्ड आउट, वो खत्म हो चुकी थी। तो सिविल वॉर एज सच वाज वीकेंड, बट जो होता है ना बची कुची कसर, वो भी निपटानी है। ठीक है, तो इट वाज लाइक दिस। 2009 में श्रीलंकन आर्मी controlled and seized the last area under Tamil militants. तमिल मिलिटेंट्स के अंडर जो लास्ट एरिया था वो श्रीलंकन आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग इन 2009 द सिविल वॉर एंडेड। ठीक है, सो इट वाज दिस वे। यस, तमिल सिंस बिकेम द सिटीजन्स ऑफ श्रीलंका। तो जो श्रीलंका की नेशनल असेंबली है, वहां के लिए जब इलेक्शंस होते हैं, जो जो तमिल वाला एरिया देखा था हमने ग्रीन वाला, वहां पे तमिल पीपल मेजोरिटी में है, तो वो डेमोक्रेसी एसेंस वहां पे, तो वो तमिल तमिल को ही वोट देके पहुंचाते हैं ना वहां पे। पहले वो पहुंचा नहीं पा रहे थे क्योंकि तमिल्स को सिटीजनशिप नहीं मिली थी नेशनल असेंबली में। अब सिटीजनशिप मिल गई है, दे आर एलिजिबल टू फाइट इलेक्शंस। तो वो इलेक्शंस लड़ते हैं, अपने इलाके में वो जीतते हैं एंड दे गो टू द नेशनल असेंबली ओवर देयर। दिस इज हाउ दे हैव गॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इट इज लाइक दिस। श्रीलंकन तमिल्स को जब राइट्स मिले तो उनको अच्छा हो गया वहां पे। ठीक है, बट मुद्दा है प्रोविंशियल असेंबली जो है वो, उसके लिए इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो ऑटोनॉमी नहीं आ रही है, सारी पावर्स अभी सेंटर के हाथ में, सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ सेंटर इज मेकिंग। इट इज लाइक दिस, ये मुद्दा है, उसको इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर टाइमलाइन। 2009, 2009 में श्रीलंका आर्मी कंट्रोल एंड सीज्ड द लास्ट एरिया अंडर तमिल मिलिटेंट्स। तो वी कैन से दैट 2009 is basically the year when militancy or civil war in Tamil श्रीलंका ended। ठीक है, अब श्रीलंकन आर्मी को फिर से इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ी। श्रीलंका को फिर से इंडिया की जरूरत पड़ी डिस्पाइट द फैक्ट कि 2005 में महिंदा राजपक्से इज अ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका विच इज टेकिंग श्रीलंका टुवर्ड्स चाइना मोर एज कंपेयर टू इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया से बिल्कुल ही कट कर दिया, नहीं कर सकते आज की डेट में। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट विद एनी कंट्री। हमारे चाइना के साथ जितने भी बुरे रिलेशन हो, वी कैन नॉट कट आर रिलेशनशिप एट ऑल विद चाइना, मतलब कंप्लीटली कट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट वॉज लाइक दिस। इंडिया बिकेम, इसी पॉइंट पे लिखेंगे 2009 वाले पॉइंट में, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ
रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि सिविल वॉर में बहुत डैमेज हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इंडिया की जरूरत पड़ी। 2009 में ये पॉइंट लिखना है। फिर 2010 में दोबारा इलेक्शंस हुए, महिंदा राजापक्से अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। 2015 तक ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो 2015 में ये इलेक्शंस दोबारा हुए, मतलब 2005 से लेकर 2015 ये 10 साल महिंदा राजपक्से वाज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। And in these 10 years, Sri Lanka went far away from India and it went nearer to China. अब क्या हुआ, 2015 में मैथिलीपाला सिरिसेना बिकेम द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट बने। मैथिलीपाला सिरिसेना ऑब्वियसली वाज काइंड ऑफ प्रो इंडिया, और जब ये इलेक्शंस महिंदा राजापक्से हारे, उन्होंने बोला कि इन इलेक्शंस को हराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मैं इंडिया की वजह से ये इलेक्शंस हारा हूं। So it was like this. So it is till 9 o'clock the class today. ठीक है, अब मैथिलीपाला सिरिसेना जब प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे। 19th अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका ये लेकर आए। क्या थी डिटेल्स 19th अमेंडमेंट एक्ट की? 19th अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन थी कि प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो कम कर रहा था। Maithripala Sirisena, despite of being the president, was undertaking certain measures to curtail or to reduce the executive powers of the president, because he felt during these 10 years, Mahinda Rajapakse has misused his executive powers as a president a lot. जैसे कि देयर वर लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो खुद से किसी को भी अपॉइंट कर सकता था एज मिनिस्टर्स, as executives, as judges in the courts. So it was like this. Yes, China did participate, Paneet. India ने भी किया, China ने भी किया। यानी ग्रीन एरिया वंदना वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ श्रीलंका। मैंने बस वो ग्रीन एरिया वहां पे इसलिए हाईलाइट किया हुआ है कि वो एरिया वो है जहां पे तमिल्स रहते थे, उनको वो क्लेम कर रहे थे कि इसको प्रोविंस बनाओ, तो वो प्रोविंस बना दिया था। वो ऑलरेडी इट वाज पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो मर्ज्ड ही था, बट वो पेपर पे ही प्रोविंस बना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है प्रेम ज्योत वहां पे, ठीक है। तो 19th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका फॉर मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 टाइम से ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। अब एंड दिस वाज एप्लीकेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब ये बैक डेट से एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि महिंदा राजापक्से 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, 2005, 2010. So according to the 19th Amendment Act, Mahinda Rajapakse could not become the president of Sri Lanka. Certain appointment powers of the president were curtailed. ठीक है, so it was like this. तो यूएसए में ऐसा है, 2 बार से ज्यादा यू कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट, सो इट वाज लाइक दिस वे। मैथिलीपाला सिरिसेना बिकम्स द प्रेसिडेंट 2015 में।
The 19th Amendment Act passed. The 19th Amendment Act passed, which diluted the powers of the president. Which diluted the powers of the president. ठीक है, चलो जी, अब 2019 में फिर से इलेक्शंस होते हैं। 2019-20 में मैथिलीपाला सिरिसेना लॉस्ट, गोटा राजापक्से पार्टी वन। ठीक है, अब महिंदा राजापक्से कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट बिकॉज 19th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन ओनली बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स। तो क्या हुआ? He cannot become. His brother Gotabaya Rajapakse becomes the president. ठीक है जी। 2020 में महिंदा राजापक्से प्राइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते तो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो बन सकते हैं। महिंदा राजापक्से बिकम्स द पीएम। अब कंफ्यूज मत होना, वहां पर प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है, जैसे इंडिया में है। बट हियर इन इंडिया द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द पीएम, having the real powers. In Sri Lanka, the head of the government is the president with the real powers, or real powers are vested with the president. PM is appointed by the president. It is like this. ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। गोटाबाया राजापक्से प्रेसिडेंट बने 2019-20 में। 2020 में महिंदा राजापक्से पीएम बने। ठीक है, ज्योति सीएओ तो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्ट होना था, वो तो हुआ ही नहीं इलेक्ट, क्योंकि एलटीटी और आईपीकेएफ के बीच में पंगा हो गया। तो आप अभी 1987 में ही अटकी हुई है। सीएओ प्रोविंशियल असेंबली का होना था, यहां पर सेंटर में तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही चलते हैं। ठीक है, सो इट वाज लाइक दिस। गोटाबाया राजापक्से प्रेसिडेंट बन गए, महिंदा राजापक्से पीएम बन गए। ठीक है, अब 2022 में श्रीलंका स्लिप्स इनटू डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए वहां पे। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्से, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्से, मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर राजापक्से, टूरिज्म मिनिस्टर राजापक्से, बहुत सारे मिनिस्टर्स राजापक्से। President has more powers in Sri Lanka. It is a presidential form of government over there. ठीक है, तो भाई राजापक्से फैमिली के बहुत सारे लोग थे और श्रीलंका में डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अब ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, ये समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस we will understand what India did over there. What was India's response over there? ठीक है, but for understanding this economic and political crisis, we should understand the features of Sri Lanka's economy. श्रीलंका की इकोनॉमी के फीचर्स। फर्स्ट फीचर,
श्रीलंका's इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है प्लस पब्लिक सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी, जैसे कि इंडिया में है। सेकेंड इज टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल कंट्रीब्यूटर इन फॉरेक्स, मतलब कि फॉरेक्स में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूशन टूरिज्म से जाता है। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, वो एक्सचेंज कराते हैं वहां पे। ठीक है। श्रीलंका इज नोन फॉर टी, रबर एंड स्पाइसेस कल्टीवेशन। टी, रबर और स्पाइसेस कल्टीवेशन। फोर्थ, एसेंशियल कॉमोडिटीज like fertilizers, petrol, coal, cooking gas, they are all imported। ये सब इंपोर्ट होते हैं, वहां पर कुछ खास नहीं है। एंड लास्ट फीचर इज दैट इट इज देयर इज दिस ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट बोले तो फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मींस सरकार का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इट्स इनकम। एंड द सेकेंड डेफिसिट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट बोले तो देर इज मोर इंपोर्ट्स एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है। तो परनीत बच्चे देखो, BRI was launched in the year 2013 and since the very beginning Sri Lanka was part of it। ठीक है। Avoid using the word Ceylon because the official name is Sri Lanka। करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बेसिकली। ठीक है। तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए ये खाता जो है करंट अकाउंट वो डेफिसिट में है। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है श्रीलंका की इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट है टूरिज्म, जो वहां पे टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं ना बाहर से, वो फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, फिर वो एक्सचेंज कराते हैं वहां पे आके। अब वो फॉरेन करेंसी श्रीलंका के फॉरेक्स में जाती है। तो टूरिज्म से जो फॉरेन करेंसी आ रही है दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द फॉरेक्स। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी आते हैं, फर्टिलाइजर का मैंने यहां पे बात जिक्र कर दिया है, चिंता मत करो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, टूरिज्म इज अ वाइटल कंट्रीब्यूटर इन फॉरेक्स। कैसे? ठीक है। सो इट इज ऑल लाइक दिस। ठीक है। चलो जी, आई होप ये सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया हो, जिन जिनको नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं कि ये क्राइसिस क्यों आया, वाई दिस क्राइसिस केम। तो गिव दिस हेडिंग, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी बिल्कुल नहीं करेंगे अनीता, क्लास के बाद में बात करेंगे 2022 के बारे में।
First reason is drop in tourism. टूरिज्म में भारी गिरावट आई, जहां से इनका फॉरेक्स मेनली बिल्डअप होता है श्रीलंका का, उस फॉरेक्स से ये लोग जो अपने इंपोर्ट्स हैं उसका बिल सेटल करते हैं, वो वहां पर भारी गिरावट आ गई टूरिज्म। वाई? बिकॉज 2019 में ईस्टर किलिंग्स हुई थी। एक एपिसोड हुआ था ईस्टर वाले दिन, गुड फ्राइडे, आप सब लोगों को पता होगा गुड फ्राइडे क्या होता है। गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आता है दैट इज द ईस्टर संडे। क्रिश्चियंस का एक त्योहार होता है, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है वहां पे इन श्रीलंका। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे देयर वर टेररिस्ट अटैक्स इन श्रीलंका। अब उस टेररिस्ट अटैक कई सारी जगह हुए, ठीक है। टेररिस्ट आउटफिट्स बेस्ड इन द आफपाक रीजन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज अटैक्स। हमें उसमें बिल्कुल नहीं जाना है कि वो क्यों हुए, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्लीज ये मत पूछना कि सर वो क्यों हुए थे, वो हो गए, ठीक है, हमारा उससे ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। बट टेररिस्ट अटैक्स हुए, इसको हम ईस्टर किलिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ईस्टर किलिंग्स में की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेंटिमेंट फैला कि भाई श्रीलंका में भी टेररिज्म पहुंच गया, देयर इज टेररिज्म इन श्रीलंका ऑल्सो, लेट्स अवॉइड गोइंग टू श्रीलंका, ठीक है। सो ईस्टर किलिंग्स इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से इट हैपेंड। अब इसकी वजह से टूरिज्म में ड्रॉप आया। फिर 2020 में कोविड आ गया, भाई बची कुची कसर इसने पूरी कर दी, कोविड ने। अभी मैं फिफ्थ पॉइंट जब पिछली स्लाइड पे जाऊंगा आई रिपीट इट, डोंट वरी, परेशान मत हो, टाइम से पूछा करो थोड़ा बस, ठीक है। तो 2020 में कोविड आ गया। अब कोविड में तो कौन जा रहा है, टूरिज्म, लॉकडाउन लग गए थे। सो इट वाज लाइक दिस। पहला रीजन ड्रॉप इन टूरिज्म, ड्रॉप इन टूरिज्म वाज बिकॉज ऑफ दीज टू फर्दर रीजंस, ठीक है। सेकंड, ओवरनाइट शिफ्ट टू organic farming. Organic farming is type of a farming in which you do not use synthetic fertilizers. You depend upon natural, I would say, elements like cow dung वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव्स, बट द प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस। प्रोडक्टिविटी इज अ बिग क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि श्रीलंका रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्यों शिफ्ट हो गया था। रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होने का मतलब यह था क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फर्टिलाइजर्स वर बीइंग इंपोर्टेड। फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहे थे, इंपोर्ट्स इन्हें कम करने थे। इंपोर्ट्स कम क्यों करने थे? क्योंकि टूरिज्म जो कि फॉरेक्स में मेजर कंट्रीब्यूटर है इनके फॉरेन रिजर्व्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, उसकी बैंड बजी पड़ी है। वहां से पैसा नहीं आ रहा है, कैसे बिल सेटल करेंगे? पेट्रोलियम वो रोक नहीं सकते, कोल कुकिंग गैस वो रोक नहीं सकते। रोक क्या सकते हैं? फर्टिलाइजर रोक सकते हैं, तो वो रोक दिया, ओवरनाइट शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग चले गए। उनका ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये जो ट्विन डेफिसिट, पांचवा पॉइंट ध्यान से सुन लेना आप, रेखा एंड मनसुख, दोनों डेफिसिट्स थे वहां पे। फिजिकल डेफिसिट मतलब सरकार की इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस एंड द एक्सपेंडिचर इज मोर। इनकम होती है फ्रॉम टैक्सेस एंड ऑल, एंड एक्सपेंडिचर तो बहुत ही ज्यादा होते हैं ऑन द पीपल। करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट्स आर मोर एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस। अब टूरिज्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, दे आर डूइंग टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स का ही पार्ट माना जाता है। आपके यहां पर अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, वो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं और फिर वो यहां लाके एक्सचेंज करा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट
फॉरेन फॉरेन मतलब एक्सपोर्ट ही होता है वो एक तरीके से, क्योंकि उसका जो सेटलमेंट है, जो भी हम सर्विसेज फॉरेनर्स को दे रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी में हो रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट्स। तो फॉरेक्स इनका कम होता जा रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंपोर्ट इनके बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे थे। तो द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को कम करने से यह सुधार हो सकता था, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए वो रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि एज आई सेड दैट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस। प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस, तो भाई सप्लाई तो कम हो गई, डिमांड उतनी है, लोग तो उतने ही रह रहे श्रीलंका में, एंड दिस हैपेंड। फिर हाई एक्सटर्नल डेट। ये पर्टिकुलरली चाइना की देन थी। दिस वॉज द देन ऑफ चाइना। चाइना ने लोन दिया, इन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट बना दिया। अब हम्बन टोटा पोर्ट बना तो दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट लग गई बहुत ज्यादा, वहां से रिटर्न नहीं आ रहा है, ईएमआई कहां से पूरी करेंगे? कोई और बहुत ज्यादा सोर्सेस तो नहीं है कमाई के कि भाई चल यहां की कमाई वहां दे देते हैं। गिनी चुनी कमाई है, मुश्किल से चल रही है इकोनॉमी, जो हिसाब किताब चल रहा है चल रहा है। अब वो पोर्ट एक, इन्होंने एलिफेंट इन द रूम कर लिया। एलिफेंट इन द रूम मतलब अगर हम एक एलिफेंट को रूम में बंद कर दे तो एलिफेंट चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है अपने आप में। ऐसे ही वो पोर्ट था, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और वो चल ही नहीं पा रहा था, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। सो इट इज इट वॉज दिस, एंड फिर चाइना ने बोला अच्छा लोन पे नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पुराना लोन सेटल कर लेते हैं, एक और नया लोन स्टार्ट कर लो, ये न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, इससे जो लोग इससे हम पुराना सेटल कर देते हैं और अपना इसकी ईएमआई तुम देते रहो। श्रीलंका ने कहा ये बढ़िया है, ये तो करते रहेंगे हम। करते तो रहे, पर डेट ट्रैप इतना ज्यादा बढ़ गया, वो डेट ट्रैप में फंस चुके थे एक्चुअली। सो इट इज लाइक दिस। शगुफ्ता देखो, चाइना वाले भी बड़े स्मार्ट है, एकदम से ऐसे नहीं आते कि भाई विद दिस इंटेंशन ऑफ लेइंग यू इन ट्रैप्स। पैसा सबको चाहिए, एवरीवन नीड्स मनी, एंड everyone needs infrastructure. China has a lot of money, China has a lot of infrastructural capabilities also. तो चाइना ऐसे दिखाता है कि मैं आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, एंड आई कैन डू दिस एट अ चीपर प्राइस। तो भाई नेबर्स, भाई जिनको जरूरत होती है वो ऐसे ही फंसते हैं फिर। ठीक है। और एक और रीजन, डीप टैक्स कट्स। राजापक्से जो 2019 में बने थे प्रेसिडेंट, यहां पर गोटाबाया राजापक्से, इनको हराने के बाद मिथिलीपाला सिरिसेना ने जो 19 अमेंडमेंट एक्ट करके प्रेसिडेंट की पावर्स खुद कर्टेल करी थी, ये हार गए थे अगला इलेक्शन 2019 में। तो गोटाबाया राजपक्से, महिंदा राजपक्से वगैरह जब ये सब लोग कैंपेनिंग कर रहे थे ना इलेक्शंस की, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था लोगों को कि हम आपको टैक्स में छूट देंगे, वी विल कट द टैक्सेस, एंड दे डिड दैट। दे डिड दैट। उन्होंने टैक्सेस कट कर दिए,
ये पता होने के बावजूद भी कि फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट इज सरकार की इनकम माइनस सरकार की एक्सपेंडिचर, एंड सरकार की इनकम इज लेस, वो और लेस कर दी, फिजिकल डेफिसिट और वाइडन कर दिया, बस लोगों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए। डीप टैक्स कट्स, कट कर दिए बहुत। जैसे पहले आपको 10% टैक्स देना था, वो अब 1% ही कर दिया, डीप कट किया। सो इट वॉज लाइक दिस। एंड ये जो डीप टैक्स कट्स थे ना, ये श्रीलंका को और ले डूब गए, क्योंकि सरकार का सब कुछ ही खत्म हो गया था, इनकम वगैरह। अब लोगों को समझ में आ गया था फिर कि भाई ये राजापक्से ब्रदर्स ये हमें ले डूबे हैं। एंड देन दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, सो इट वॉज लाइक दिस। एग्जाम्पल डीप टैक्स कट का यार, पहले टैक्सेस आपको 10% देने हैं, या तो वो 0 कर दिए, डीप टैक्स कट कर दिया। टैक्स कट्स मतलब टैक्स माफी, और वो भी मोटे मोटे माफ किए टैक्स उन्होंने। व्हाट इज द यूज ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप? चाइना डेट देता है, चाइना अपना प्रेजेंस बनाता है वहां पे, फिर चाइना ये भी बोलता है कि आप मेरे को वापस नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, मेरे को वहां पे परमानेंट लोकेशन दे दो, परमानेंट वहां पर मेरे को रहने के लिए वो दे दो, मतलब वो जगह ही मेरे नाम कर दो, वो पोर्ट मेरे नाम कर दो जो मैंने बनाया, क्योंकि तुम उसको दे तो पा नहीं रहे हो। अब उससे क्या होगा कि चाइना की एक परमानेंट स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी वहां पे, प्रेजेंस आ जाएगा, परमानेंट प्रेजेंस। एंड दिस इज व्हाट दे वांट। कुछ टैक्सेस कंप्लीट 0, कुछ टैक्सेस बहुत ही कम कर दिए थे। ठीक है, ये सब चाइना कर रहा था अकॉर्डिंग टू इट्स BRI। IMF इरफा से, ये IMF के प्रोग्राम से 1 साल पहले ही बाहर आ चुके थे, 2019 में IMF के प्रोग्राम से ये बाहर आ चुके थे, पर फिर भी IMF ने कुछ कुछ इनको सपोर्ट किया है इंडिया के कहने पे। ठीक है, इट वाज लाइक दिस। ठीक है, अब इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडियाज 4 पिलर इनिशिएटिव, इंडिया ने कैसे हेल्प करी। अभी मैं रिसेंटली एस जयशंकर की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया, वही जो लंदन टॉप में इंटरव्यू उनका, उसमें बताया कि जी कैसे श्रीलंका की हमने मदद करी। ठीक है, तो ऐसा IMF क्यों क्विट किया? क्योंकि IMF में भी बने रहने के लिए प्रणीत आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं वहां पे, अपनी इकोनॉमी की कंडीशन ठीक रखनी पड़ती है, तभी IMF आपकी मदद करेगा। तो वो ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे इन IMF, सो इट वाज लाइक दिस। ठीक है, चलो, इंडियाज 4 पिलर इनिशिएटिव और 4 पिलर रिस्पॉन्स। पहला, फर्स्ट, इंडिया एक्सटेंडेड a line of credit of $1 billion. India extended a line of credit of $1 billion. ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? देखो, इट इज अ लोन। ठीक है, बट ये लोन जो है, एक तो इट इज गिवन ऑन वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, ये इसको देने का और वापस लेने का तरीका अलग होता है। कैसे होता है? जैसे कि $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसका मतलब कि ये 0 है, दिस इज $1 बिलियन, मैक्सिमम इतना लोन देगी इंडिया श्रीलंका को। अब जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना ये चीज, एवरीवन प्लीज स्टॉप टॉकिंग, अपने पेन्स रख दो,
यहां पे ध्यान देना लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, क्योंकि ये आगे भी बहुत यूज होएगा। ये क्या होता है, एक लोन होता है। हमने बोला लाइन ऑफ क्रेडिट हमने एक्सटेंड करी ऑफ $1 बिलियन, मतलब कि मैक्सिमम लोन जो हम देंगे वो $1 बिलियन का लोन देंगे हम श्रीलंका को। बट जरूरी नहीं है कि वी एक्सटेंड दिस लोन और वी गिव दिस लोन ऑल एट वंस। मतलब कि वी लेट सपोज गिव दिस लोन ऑफ $500 million इन द फर्स्ट इंस्टेंस। पहले ट्रांच हमने $500 million का दिया और बोला उनको कि देखो कि कैसा है, कैसा चल रहा है, तुम इसको किस तरीके से कर पाते हो यूज। ठीक है, श्रीलंका ने उसको यूटिलाइज करा, थोड़ा बहुत किया, इन्वेस्ट किया उन सेक्टर्स में किया जो बिल्कुल इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग है, वहां से वो पैसा कमाने लग गए। तो श्रीलंका की कुछ महीनों बाद थोड़ी सी हालत ठीक हुई। ठीक है, और जब हमने उनको $500 million दिया तो हमने इतने पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा, 500 मिलियन पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा, हमने पूरे 1 बिलियन पे नहीं करा। अब 4-5 महीने बाद लेट सपोज श्रीलंका की हालत ठीक हो गई, उन्होंने हमें 200 मिलियन वापस कर दिए, 200 मिलियन दे रिटर्न अस बैक। ठीक है, ये 200 मिलियन वापस आ गए हमारे पास। तो अब श्रीलंका के पास रह गए हैं 300 मिलियन। अब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो हम इस पे लेंगे। फिर श्रीलंका कहता है यार मेरे को ना अब थोड़ी सी और की जरूरत पड़ रही है, करीब करीब 400 मिलियन और की जरूरत पड़ रही है। तो 400 मिलियन और ले लिया उसने। अब टोटल चला गया है श्रीलंका के पास 700 मिलियन। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 700 मिलियन पे लेने लगेंगे। ऐसे ही मैक्सिमम $1 बिलियन तक ले सकता है। अब वो इंडिया पे डिपेंड करेगा कि वो $1 बिलियन एक गो में देगा या धीरे धीरे देगा, असेस करेगा। जनरली ऐसा होता है कि असेस करते हैं, देखते हैं, ऐसा ना हो कि 1 बिलियन का 1 बिलियन ही डूब जावे पूरा। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो दिस वाज लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $1 बिलियन एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू श्रीलंका। ठीक है, और दिस लाइन ऑफ $1 बिलियन क्रेडिट वॉज फॉर परचेजिंग फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल। ये चीज करो। ठीक है, इससे अब भाई फ्यूल को बेचोगे, बेच के टैक्सेस कमाओगे, वो टैक्सेस से कुछ कमाई होगी डेफिनेटली। सेकेंड पॉइंट, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। कि हमारे बीच में जो ट्रेड होगा, इंडिया श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज इंडिया। ठीक है, ये जो एसेंशियल्स मंगवाते हैं ना श्रीलंका, पेट्रोलियम, कोल वगैरह, वो इंडिया सप्लाई करता है टू श्रीलंका। ठीक है, तो अब जो भी श्रीलंका को इंपोर्ट्स के सेटलमेंट करने वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में हमसे कर सकता है। इट कैन डू इट इन इट्स डोमेस्टिक करेंसी विद अस। हमने कहा कोई बात नहीं, ये हम करेंगे आपके लिए, डोंट वरी, ताकि आपको डॉलर पे डिपेंड ना करना पड़े। यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द डॉलर्स। वो वाकई में बहुत कम है आपके पास, आपका फॉरेक्स नहीं है, फॉरेक्स में डॉलर्स नहीं है, but you can definitely pay us in your domestic currency. These kind of arrangements are called as currency swap arrangements. ठीक है, तो it is like this. हाँ, it is like CC limits. Definitely, Divya Jain, it is like the same. Next, इंडिया ने बोला मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रिंको ऑयल फार्म्स। श्रीलंका के ईस्टर्न साइड में एक जगह है ट्रिंकोमाली। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर श्रीलंका को कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड आप वेल्स बनाओ और उन वेल्स में आप ऑयल को स्टोर करो, क्रूड ऑयल को।
क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो एज इट इज निकलता है जमीन से, आप उसको इंपोर्ट करो और स्टोर करो। और यहां पर वी विल हेल्प यू इन मेकिंग ऑयल रिफाइनरीज एज वेल। उन ऑयल रिफाइनरीज में इनको आप रिफाइन करो, खुद तो यूज करो और उसको एक्सपोर्ट भी करो रिफाइंड ऑयल को। पेट्रोलियम को रिफाइन करने से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, वैक्स निकलता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक वो पूरा एक्सपेरिमेंट होता था। सो इट वॉज लाइक दिस। इंडिया भी ऐसे ही करता है। इंडिया के पास खुद के रिजर्व्स नहीं है। 15% इंडिया जो अपनी तेल की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से निकालता है, बाकी 85% वो इंपोर्ट करता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इस तरीके से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, और यही हम फॉर्मूला श्रीलंका को दे रहे थे। आपको पता है दुनिया की इंडिया की छोड़ो, एशिया की छोड़ो, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया में, अंबानी भाई, जामनगर, रिलायंस। तो ये एक्सपर्टीज है हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग की, वो एक्सपर्टीज हम उनको दे रहे थे। ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। तो ट्रिंको ऑयल फार्म्स का डेवलपमेंट करना है हमको। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो इसमें है, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना है वहां पे। इंडिया नुकसान में आपको दिख रहा होगा अभी गरिमा, बट आप लॉन्ग टाइम सोचो। चाइना का पत्ता काटा, चाइना के बारे में पर्दाफाश हुआ वहां पे श्रीलंका में। इंडियंस को वहां पे इन्वेस्ट करने की वो मिल गई परमिशन कि आप करो इन्वेस्ट। अब अडानी बना रहा है, अंबानी बना रहा है रिफाइनरी वहां पे, ऑयल स्टोरेज बना रहे हैं अंडरग्राउंड। तो किसी भी चीज को बहुत छोटे नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए, ब्रॉडर एंगल। तो इट इज लाइक दिस। ठीक है। राजीव गांधी को तो सिखों ने अपने मारा था। अरे वो इंदिरा गांधी थी रे साक्षी। ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। अरे गरिमा, ऐसा नहीं है कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो हमारी ही इंडस्ट्रीज वहां पर लगेंगी श्रीलंका में, तो हमारा तो धंधा बढ़ेगा रे, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। हमारा धंधा बढ़ रहा है, हमारे ही लोग जा रहे हैं वहां पे। करेंसी स्वैप इज लाइक, जो भी इंपोर्ट्स श्रीलंका विल डू फ्रॉम इंडिया, उन इंपोर्ट्स की जो पेमेंट सेटलमेंट होगी वो श्रीलंकन करेंसी में ही करेगी। ठीक है। भाई वो क्यों हम काउंटर करें रोहित? हम अगर ये कर देंगे तो हम तो श्रीलंका को सीधा सीधा यही सिग्नल दे रहे हैं ना कि तुम डेप्ट और लेते रहो चाइना से, हम इन फ्यूचर भी तुम्हारा कर देंगे पूरा। नहीं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका निवारण करना है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि श्रीलंका की कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। नहीं, श्रीलंका, अब जैसे इंडिया के पास जो श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं उसकी पेमेंट हम दोनों में से किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, श्रीलंकन करेंसी में भी कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में भी कर सकते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो श्रीलंका जा रहे हैं उनके पास भी यही ऑप्शन है, वो किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में कर सकते हैं या श्रीलंकन करेंसी में कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। बट डॉलर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे जिनमें क्या करेंगे श्रीलंकन करेंसी के साथ। इंडियन टूरिस्ट बहुत जाते हैं, उनको पकड़ाएंगे। हाँ, रेमिटेंस गट फंड इंक्रीज होगा। ठीक है।
क्लास ओवर है। साहिल कुमार जायसवाल, देखो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट 2022 के पीवाईक्यू देखो, जीएस 2 के 2022 के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना जीएस 2 का, ठीक है। और उसमें आईआर में क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है, आईआर का क्वेश्चन है श्रीलंका इंडिया के ऊपर। उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अब आप बिल्कुल तैयार हैं, उस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। फोर्थ पॉइंट जानवी इज लाइक कि इंडियंस के जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे श्रीलंका में, उसको बढ़ावा देना है, उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। तो ये हमेशा मैं देता हूं आपको, परसों देता हूं, मैं एक बार बात कर लूं वहां पे। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरे को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए टेलीग्राम आईडी, एंड मेरे को सच कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, बट मेरे को एक बार वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में पूछ लेने दो, ठीक है, कि मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, ठीक है। चलो, ओके, देन लेट्स फाइंड अप, ठीक है। चलो, सुप्रिया, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ऐसे नहीं हर जगह आप उसमें मत टाइमलाइन नहीं मेंशन कर सकते। टाइमलाइन एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 2022 का पीवाईक्यू है, इंडिया श्रीलंका के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। अरे अभी श्रीलंका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिग्निफिकेंस है, अभी चैलेंजेस बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे एंड देन, ठीक है, हम आएंगे मॉलडीव्स पे। क्योंकि यार देखो, कुछ ना कुछ डॉलर तो चाहिए क्रिश उनको, बिना डॉलर के वो क्या करेंगे, डॉलर उनके पास खत्म हो रहे हैं, कुछ तो चाहिए उनको डॉलर, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। शास्त्री श्री माबू, ये तो कल का क्वेश्चन है मुस्कान। 9,75,000 तमिलियंस को आइडेंटिफाई किया था श्रीलंका में, जिसमें से 5,25,000 को इंडियन सिटीजनशिप मिलनी थी, 3 लाख को श्रीलंकन सिटीजनशिप मिलनी थी, और 1.5 लाख का फ्यूचर हैड टू बी डिसाइडेड। ये दोनों लीडर्स के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। ये था शास्त्री सिरीमावो पैक्ट, बट इंडिया वॉज टू स्लो इन ग्रांटिंग सिटीजनशिप। नहीं समझ में आया तो आप कल का वीडियो देखिए मुस्कान, आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, हाँ अभी मैं अपलोड करवा देता हूँ। नहीं परनीत, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उन्होंने 2022 में ही वापस ले लिया था वो डिसीजन, फर्टिलाइजर से, शिफ्ट हैज बीन मेड, ठीक है।